मैं शो करके आया तो मैं पापा नूं पैसे फड़ाए। और पापा बिजनेसमैन नहीं होंदा जिहड़ा पैसे इदां खच करके गिनदे आ। मैं पापा देखना जरा पैसे हैगे ते इदां दा खच करके गिनिया ते कहंदे आ कादे। मैं कहा शो कीता ही यार इहदे पैसे भी मिलदे आ। ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ God can't be everywhere so they have created mothers and शैतान can't be everywhere so they have created ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ। आप कोई भारत यात्रा में जा रहे थे तिरंगा लेके मदर इंडिया की आपने वाइट साड़ी पहनी हुई थी। तो यू नो समटाइम्स लाइक when lady is looking beautiful and she is well dressed and she is powerful, we guys go weak on our knees in talking to her. A compliment सी एक खिंचा ਤੇ ਰੇਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਕਰ ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸੀ ਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਮੱਛਾ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਛ ਮੁੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਬਣਾਤਾ। ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿੱਟਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅਸੀਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਬੜੇ ਖੱਪੇ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਬਣ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੇ 2 दिन शूटिंग चली तो हमें लगा कि यार हमारा कुछ होएगा कख नहीं होगा। आप खड़े रहे बुत बन के। जब मैं बाद च घर आया मैं लोगों को पूरा रोल मैं कहा मैं बॉलीवुड चलिया रोल करन बॉलीवुड चलिया मैं रोल करा। जब मैं वापसी आया तो लोग कहते कैसा रोल था। मैं कहा सोफे जैसा मतलब काउच। मैं कहा जैसे सोफा एक जगह पड़ा था मैं वहाँ एक ही जगह खड़ा था। वो पंजाबी एक्सेंट च होनी चाहिए जी हिंदी है वो हिंदी एक्सेंट च होनी चाहिए। जिवें मैं कई बार मैं हैरान होना कई बार बच्चे इतने कहते ना मैं थोड़े नाल चाह पीना मंगदा आ। What is मांगदा? 20 जुलाई को मैं कर रहा हूँ 20 जुलाई को दिस इज और मैं भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा। हाँ she is a host और मैं सरी च काफी शो कीते लैंगली कीते। मेरी ना एक दिल दी ख्वाहिश सी कि ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਐਂਡ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਆਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ ਰੋਟੀ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ सत श्री अकाल नमस्ते आदाब। GKM मीडिया प्रेजेंट्स जिंदगी के रंग तराना के संग। जी हाँ अब एक पॉडकास्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं और इसमें आपके लिए हम लेके आएंगे बेहतरीन नायाब हीरे जिनकी ज़िंदगी कैसे तराशी गई वो कहानियाँ किस्से हम आप तक पहुँचाएंगे। और आज के इस पहले एपिसोड में मेरे साथ हैं मैं ये कह सकती हूँ जो मल्टीलिंगुअल कॉमेडियन हैं सरी में इस समय अपना पूरा नाम बना चुके हैं। जी हाँ आई एम टॉकिंग अबाउट पाजी द कॉमेडियन हरमीत सिंह कोहली एंड लेट्स हियर हिम आउट। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी पाजी द कॉमेडियन ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत निघा स्वागत। थैंक यू जी थैंक यू। सत श्री अकाल नमस्कार आदाब और वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ਗੱਲ ਦੱਸੋ जी ਪਾਜੀ ਦ ਕਮੇਡੀਅਨ जी ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਨਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਰਨ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਬਟ ਵਾਈ ਓਨਲੀ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜੋ ਸੋਚਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਮਾਲਿਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ I chose stand up comedy before that I think stand up comedy chose me and ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈਗਾ ਪਾਜੀ ਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ ਇਹ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ because he still treats me like my elder brother so he introduced me into comedy and he is from Mumbai. He used to say all the time पाजी you can तू ऐसा कर सकता है you know that Mumbai accent yeah पाजी तू ऐसा कर लेगा पाजी तू बहुत बढ़िया कर लेगा and पाजी पाजी पाजी। एक दिन हम बैठे हुए थे and he made this my Facebook page he randomly typed पाजी the comedian। मैं कहता मैं कहा यार की लिख रहे हैं कहना नहीं पाजी पाजी I say you the because I respect you comedian you will be eventually so this is how it became पाजी the comedian। ਇਹ ਕਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਪਹਿਲੇ? ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ 2019 ਦੀ। I started in 2018
and in 2019 this happened and he gave me this tag and आज तक यही चल रहा है, हम सारे पास यही चल रहा है. That's wonderful. क्योंकि that means this career was just gifted to you. So, but किते ना किते, क्योंकि अगर एक कोई आर्टिस्ट है, जी, वो किसी ना किसी ਨੂੰ देख के इंस्पायर ਹੁੰਦਾ, जी, आइडलाइज करता है. जी. Let me just put a little more in details like comedy. ये शो में हम हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश सब चलाएंगे. I'm a multilingual comedian. I do in English, हिंदी, पंजाबी. मैं पंजाब तो गुरदासपुर तो हाँ, पठानकोट मेरे पापा, but I was born and raised in Delhi. फिर पढ़ाई खालसा कॉलेज, फिर MBA ड्रॉप आउट आ सिम्बोसिस पुणे तो पूरी नहीं की थी ते, बट सो ऑल माई स्टडीज हैज बीन इन इंग्लिश. से भाषा का कोई चक्कर नहीं है, जिन्नी मर्जी जिहड़ी मर्जी भाषा बुलवा लो, कोई चक्कर नहीं. I तो feel I'm पंजाबी by heart. मैं पंजाबी बाय नेचर, या मैं पंजाबी बाय, या पंजाबी बाय नेचर, पंजाबी बाय हार्ट एंड पंजाबी बाय विल, और हैगे ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਆ. ਬਿਲਕੁਲ. ਸੋ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਗ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਜਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ, ਬਟ ਇੱਕ ਆਰਟਿਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਈਡਲਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨ ਲਓ ਕਾਮੇਡੀ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਕੱਟਦਾ ਹੈ ਐਕਟਰਸ ਨੂੰ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮੇਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕੇਸ਼ਵ ਮੁਖਰਜੀ, ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਮਹਿਮੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਵਾਸ ਜੌਨੀ ਲਿਵਰਸ ਟਾਈਮ. ਜੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਈਡਲ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਪਲੀਕਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਨਾ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ. ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਆਂਦੇ ਨੇ ਲੈਜੈਂਡਸ ਨੇ, ਔਰ ਸਲਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਰਟ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟਡ ਸੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਨੇ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਐਵਰੀ ਕਮੇਡੀਅਨ I've heard they have somebody whom they idolize. So what was there in your case? Idolize, I would say like idol ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਈਡਲ ਉਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਤੇ ਬਾਕੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਔਰ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, this beautiful profession और पैशन और आर्ट फॉर्म came into my life. वो अपने कहते हैं ना, जब मोहब्बत होती है ना तो बंदा अपने आप रास्ते बनते जाते हैं और आप बहते चले जाते हैं, आपको पता नहीं होता आप किस दिशा में जा रहे हो, लेकिन वो हल्की ब्रीज आ रही होती है ब्लेसिंग्स की और आशीर्वाद की. Oh my goodness. तो कॉमेडियन हैगे ने कि पक्का कोई फिलोसोफर और you know like ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, we are thinkers. Oh really? Yes. Like ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ I perform for 90 minutes now, ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ 90 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਾਡਾ 골ਡ ਕੰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇੱਕ ਜੋ ਨੂੰ 100 ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਛੋਟੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰਗੜਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਡਾਇਲੌਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਹੈ ਹਰਸ਼ ਗੁਜਰਾਲ, ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਓਪਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ. ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ बना हुआ शाहरुख खान सबको अच्छा लगता है, बनता हुआ किसी को नहीं अच्छा लगता. So true. तो क्योंकि ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਮਾਈਕ ਕਰਦਾ ਸੀ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ 2-3 ਲਾਈਫ ਕਾਮੇਡੀ 'ਚ ਮੇਰੇ ਅਪ ਘਟ ਗਏ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ, ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਡ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ ਸਟਫ. ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ. ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ. ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ ਸੋ ਮਚ ਲਵ ਐਂਡ ਬਲੈਸਿੰਗ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਐਡਸ, ਟੋਰਾਂਟੋ, ਬਰੈਂਪਟਨ, ਕੈਲਗਰੀ. ਆਈ ਜਸਟ ਕੇਮ ਬੈਕ ਫਰਮ ਐਡਮਿੰਟਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ. ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲੇ ਹਾਂ. ਪਹਿਲੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸ਼ੋ ਹੈ, बहुत बड़ा 350 show आ रहा है, and we will definitely talk about it because there is so much to actually tell audience जी. because 90 minute it's koi kohli sahab nu kida you know like you are giving so much to the society जी, जी, and जी. today that's how this interview you know got into shape कि जेड़ा बंदा मतलब मैं आई थिंक दूरदर्शन ने चाहता सी एक जग हसे आप रोए, एक भी जिदा जो सर्कस ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਨੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਊਨ ਹਸਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਜੋਕ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਯੂ نو, ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ. ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਕਾਮੇਡੀ ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਦ ਮੋਸਟ ਨੋਬਲ ਕਾਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਾਉਣ ਦਾ, ਰੋਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗ੍ਰਿਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ. No, but that's integral. That's actually, it comes as a package, I guess. It comes as a package, yeah, definitely. So, but who is Harmeet? Only the comedian, and why only comedy? You said Akal Purak, ਤੁਹਾਡੇ idol ਨੇ, but what is more about Harmeet?
ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਇਨਸਾਨ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰਸੀਵੀਅਰੈਂਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕੀ, ਹਰ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦ ਓਨਲੀ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹਿੱਟ ਦੈਟ ਬੁਲ ਸਾਈ। ਜਿਵੇਂ ਵੁੱਡ ਪੈਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਰਖਤ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬਾਈ ਦੈਟ ਕਨਸਟੈਂਟ ਹਿਟਿੰਗ ਯੂ نو ਵਿਦ ਜਿਹੜੀ ਚੋਂਚ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। तो you have to do that, perseverance होनी चाहिए, constantly ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। it depends कि आपकी मोहब्बत कितनी पाक है और कितनी मजबूत है। अगर मोहब्बत बहुत मजबूत है, आप हिट करते रहोगे ultimately it's gonna happen। मेरे लिए हुआ है, मैं 6-7 साल से कर रहा हूँ। I started in 2018 और पहले 4-5 साल तो बंदा बहुत औखा होता है और रिस्पॉन्स भी नहीं मिलता। घर वालों ने भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करा। सपोर्ट इसलिए नहीं करा क्योंकि वो अगेंस्ट थे, उनको बेचारों को पता नहीं था, क्योंकि आपके घर वाले नहीं चाहते कि बेचारा भूखा मरे, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ बिग बिजनेस फैमिली। तो जब मैंने स्टार्ट करा तो मेरे पापा कह रहे भी यार इतना बड़ा तेरा कैबिन और इतना सब कुछ तेरे को हमने बना के दे दिया। जब माँ बाप को लगता ना कि हमने बनाया तो अब ये खाए। ट्रू। ते पापा ने पूरा ट्रांसपोर्ट लॉजिस्टिक का काम, फैमिली चाਹੁੰਦਾ है यू ना कि मैं लेगेसी हैज टू कंटिन्यू। यस मैंने किया किसके लिए? तेरे लिए तो किया। तेरे लिए किया। और तू उस कैबिन से उठ के उन स्मॉल शेडी क्लब्स में जाके लोगों को जोक सुना रहा है, ये क्या कर रहा है। ओ आई नो, बट ठीक है जी, जिव तिस भावे ते चलावे जिव होवे फरमान, है ना, रब दा हुक्म है। ते ठीक है, अब शुक्र है परमात्मा दा, वधिया सा। उस समय मुझे लगता है हरमीत, जब आप अपने स्ट्रगल पीरियड में होते हो, जैसे अभी आपने जिक्र ही किया था, लोग सोच भी नहीं सकते कि दुनिया स्ट्रगल कर रही है, तेनू बड़ा लोगों ने चढ़ा लेना। पेरेंट्स जस्ट वांट द कंफर्ट जोन फॉर देयर किड्स, सो वो गलत भी नहीं होते, बट उस समय इतना सपोर्ट की जरूरत होती है कि लगता है यार ये भी नहीं समझेंगे। हाँ बहुत। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਭੋਲੇ ਪਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 2-3 ਸਾਲ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ? ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਢੋਲੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਮੇਰੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਫੜਾਏ। ਉਹ ਪਾਪਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਏਦਾਂ ਖਚ ਕਰਕੇ ਗਿਣਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਪਾਪਾ ਦੇਖਣਾ ਜਰਾ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਏਦਾਂ ਤਾਂ ਖਚ ਕਰਕੇ ਗਿਣਿਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਦੇ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਓ ਮਾਈ ਗॉड, ਇਟਸ ਸੋ ਸਵੀਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਯਾਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਪਾਪਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, God can't be everywhere, so they have created mothers, and शैतान can't be everywhere, so they have created ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਠੀਕ ਹੈ, God so true। ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੁਹਾਡੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ। ਵੈਸੇ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਖੈਰ ਖਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਭੈੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਰੱਕੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਹਾਰਵਰਡ ਦੀ ਇੱਕ ਫੈਲੀਸੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਰੇਮਨੀ ਹੋਈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਧੀਆ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂ ਕਮ ਫਰਮ ਅ ਐਫਲੂਐਂਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਯੂ ਹੈਵ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ। ਵਾਓ। ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਰਡਸ਼ਿਪਸ ਮਿਲੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭੈੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰੱਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਭੈੜਾਪਣ ਛੱਡਣ ਵੀ ਨਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਕਹਿਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਇਹ ਕਰਦਾ ਉਹ ਕਰਦਾ। ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਜੀ ਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਗੰਦਾ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਖੂਨ ਆਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਗੰਦਾ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਹੁਣ ਆਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬੁਲਾਓ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਰਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਵੀ ਜਸਟ ਸਪੋਕ ਅਬਾਊਟ ਵਾਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟੁਕ ਯੂ ਇਨਟੂ ਕਾਮੇਡੀ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਲੁੱਕ ਆਈ ਐਮ ਵੈਲ ਸੈਟਲਡ, ਵੈਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ਡ। ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ। ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਜਾਂ ਵੈਲ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇਟ ਵਾਸ ਵੇ ਬੈਕ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰੀ ਸੇ ਆਤੀ ਹੂੰ, ਵਹਾਂ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਤੇ ਹੈ। रिमेंबर, आई हैव अ शार्प मेमोरी।
ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਰਾਣਾ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਹੈਨਾ। That's a ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜਤੀ हाँ ਹੋ। हाँ हाँ मैं देखा जी, मैं कहा यार ओके। फिर व्हेन आई केम कनाडा आई सॉ यू एज ए वेरी पॉइज्ड लेडी। आप कोई भारत यात्रा में जा रहे थे तिरंगा लेके, मदर इंडिया की, आपने व्हाइट साड़ी पहनी हुई थी। तो यू नो समटाइम्स लाइक when lady is looking beautiful and she is well dressed and she is powerful, we guys go weak on our knees in talking to her. So but बाद में तुम्हें पता लगता है that was just preconceived notions, ऐसा कुछ भी नहीं है। We all are same by the end of the day, right? A compliment सी, एक खिंचा सी। बस I was so यही कॉमेडी है। कॉमेडी यही है। कॉमेडी is something like people ask me what is stand up comedy. Comedy is something which everybody have deep in their heart, but they don't have audacity to vent out, to tell on the face of people, and this is what we do. About to ask you, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ shows ਜਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ, but ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜੀ, I'm finding you a very soft hearted ਹਾਂਜੀ, and a very gentleman ਜੀ, and ਵੈਸੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ gentleman ਕਹਿਣਾ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। I like the way you push your shoulders, yeah. You know why? Because I'm married to a Sikh. जी, जी, जी. So and I think my husband is the most मतलब वो वही हुआ था आपके साथ गदर में, ये लो ये हो गई सीखनी है, actually, है ना? actually. So no, my question was कि इतना एक तो पाजी, कैन यू बिलीव माय हस्बैंड को भी मेरी मदर भी उनको पाजी कह के बोलते हैं, क्योंकि एक रिस्पेक्टफुल लगता है। मेरे नाल दोनों होंदा चीजें मेरे नाल होंदा बहुत ज्यादा होंदा लाइक हुन आई परफॉर्म इन इंग्लिश आल्सो, लाइक लास्ट नाइट आई वाज परफॉर्मिंग एट मॉर्गन क्रीक, उत्थे सारे गोरे सीगे ते मेरे नाल मेरी ओपनिंग एक्ट सी रेशल। Okay. She is a Canadian comic. I know her. ਤੇ ਰੇਸ਼ਲ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੈਲਕਮ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਭਾਜੀ ਦਾ ਕਮੇਡੀਅਨ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਤੂੰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ The way the pronunciation. Yes. ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ pronunciation has a very important role. ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਜੀ, ਜੀ। ਹੈ। ਅੱਜ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਹਰਮੀਤ, because you're yourself a such a talented, versatile, Thank you, thank you. actor, and I think whatever role play an actor does, maybe if it's news, जी. if it's a radio, जी. or if it is a stand-up comedy or something which you're doing on Bollywood or on the Tollywood or theatre, ਜੀ, ਸਾਰੇ ਐਕਟਰਸ ਨੇ ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਸ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਲ ਮਿਲਿਆ, ਸੋ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ 'ਚ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੀਰੀਅਸਲੀ? ਯੈਸ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇੱਕ ਨਾ ਮੂਵੀ ਆਈ ਸੀ 83 क्रिकेट की, है ना? एवरीबॉडी नो, है ना? क्रिकेट की 83 मूवी आई थी, तो उस मूवी में मेरे को गुड़गांव उन्होंने बुलाया 2 दिन की शूटिंग के लिए, और उन्होंने इंदिरा गांधी का ना सिक्योरिटी गार्ड बना दिया मुझे, वो सफारी सूट पहन के एंड ऑल दैट स्टफ। तो बहुत बढ़िया इंसिडेंट, वाज वेरी फनी। मेरे साथ एक लड़का था राजपूत चौहान करके, उसका कुछ ऐसा नाम था, मतलब ही वाज अ राजपूत गाय। तो अब मैं तो सरदार हूँ, तो जो मेकअप आर्टिस्ट आते हैं उन्होंने मैंने टच नहीं किया बिकॉज ऑफ माई रिलीजियस एंगल। दे वर स्केर्ड बिकॉज मेरी टर्बन, मैं घरों तैयार होके आया सी। उन्हें मैंने पूछा, कुड़ी ने कहंदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਟੀਮ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰੋਂ ਪੱਗ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਚੌਹਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਛਾਂ ਮੱਛਾਂ ਇਦਾਂ ਵਧੀਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਦੀ ਮੁੱਛ ਮੁੰਡ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰਲੀ ਚੈਪਲਿਨ ਬਣਾਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇੰਨਾ ਪਿੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਤੇ ਐਸੀ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ, ਬੜੇ ਖੱਪੇ। ਤੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ गार्ड बन के खड़े हुए सी। ते 2 दिन शूटिंग चली, ते हमें लगा कि यार हमारा कुछ होएगा, कख नहीं होगा, आप खड़े रहे बुत बन के। जब मैं बाद च घरे आया, मैं लोगों को पूरा रोल, मैं कहा मैं बॉलीवुड चलिया रोल करन, बॉलीवुड चलिया मैं रोल करन। जब मैं वापसी आया तो लोग कहते कैसा रोल था, मैं कहा सोफे जैसा मतलब काउच। मैं कहा जैसे सोफा एक जगह पड़ा था, मैं वहां एक ही जगह खड़ा था। मैं कहा 2 दिन मेरी लत्ता दोगी। This is always the beginning, Harmeet. हाँ मैं ठीक है, सोफे जैसा रोल। हुन मैं मेरा रोल जरा सीगा ना, वो मूवी में ना उसको पॉज करके ना ब्लर को ओपन करके दिखाना पड़ता है। देखो वो खड़ा मैं इंदिरा गांधी के बीच। दैट वाज याद नहीं, ਉਹ ਸ਼ਾਹਰੁਖ ਖਾਨ ਦੀ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ
देखना वो कहाँ, मैं कहाँ हूँ, मैं वहाँ था आपके पीछे। बट आज एंड दिस रिमाइंड्स मी, पीछे शाहरुख साहब के साथ उनकी जो मदर बनी है दूसरा केवल में और दिल दरिया में, बाद में जब उन्होंने रोल किया, कहती पहले वो शाहरुख मेरे साथ काम कर रहा था, बाद में मैंने शाहरुख के साथ काम किया। एंड माय क्वेश्चन नेक्स्ट कमिंग इज टू यू, रिलेटेड टू दैट यू हैव ओपन फॉर अभिषेक उपमन्यु जी, Amit Tandon. When is somebody coming to open you? So जो मैं अभी शो कर रहा हूँ, और इस शो में मुझे मेरी फेलो कॉमिक है जैकी एम्स्टन, शी इज ओपनिंग मी, शी इज अ वेरी गुड कॉमिक। उसके बाद मैं जब इंडिया जा रहा हूँ तो इंडिया में मेरे साथ इंडिया के मेरे कुछ कॉमिक दोस्त हैं, दे आर मोर देन हैप्पी, दे आर ईगरली वेटिंग फॉर मी। उसके बाद जब मैं कैलगरी एडमिंटन हूँ, मेरे साथ एक और यहाँ पे मेरी फ्रेंड है एमिली, तो एमिली विल बी ओपनिंग। तो हम ऐसे एक दूसरे को ओपन कर करके हमारा सेट बनता है विजिबिलिटी में। मेरे को ऐसा लगता है कि स्टैंड अप कॉमेडियंस की एक बड़ी प्यारी दुनिया, हम हमेशा एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे की वीडियो शेयर करते हैं, एक दूसरे को गाइड करते हैं। सो दिस इज व्हाट आई लव अबाउट स्टैंड अप कॉमेडी। That's the beauty of the industry that I mean, because it's a respect and understanding, and you know, a compatibility, like you will never see a singer sharing a song of another singer. So true. नहीं आजकल होता है, और थोड़ा जा आजकल ऐसा है ना कि वो सिंगर्स को भी ना अपने आप को फिलैंथ्रोपी और चैरिटी दिखानी पड़ रही है, टू हैव दैट इमेज कि हम भी दिल के बहुत अच्छे हैं and all that. नहीं ऐसा नहीं, माड़े नहीं है। नहीं, but अब मुझे लगता है ये world is changing as you guys have taken us, you know, like a task, I guess. जी देखो, यही मैं बात करती हूँ, जैसे हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, अगर एक तरफ से आप कह रहे हो अकालपुर रखने आपको इसके लिए चुना क्योंकि आपको कॉलिंग हुई, let's put it in this word that you had a calling from inside, and then your friend came into your life who changed your name, then you tried it, your father sahab understood it कि नहीं यार साडा मुंडा हुन चल चुके हैं, खोटा सिक्का नहीं है, चलेगा हुन डॉलर खेलेगा। So now the things are going, but it's a very big noble cause as well, कि आप देखो लोगों की अब अटेंशन स्पैन 30 सेकंड रह गई है, 30 सेकंड से ऊपर लोग कुछ देखना ही नहीं चाहते। अब 90 मिनट का जब आप शो कर रहे हो, आप लोगों को बुला रहे हो, हंसा रहे हो, वो घर भी तो कितना हंसते हंसते जाएंगे। बट इन अ वे इस चीज को करने के लिए आपके कितने स्ट्रगल्स होते हैं, कितना सारा आपके लिए मुश्किल होता है? देखो मैं इसको स्ट्रगल, देखो ऐसा, जब आप किसी चीज को प्यार करते हो ना, तो वो उसको पाने के लिए जो आप कर रहे हो वो स्ट्रगल नहीं लगती। मतलब मेरे को ट्रक ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸ 1 ਦਾ। Oh really? Yes, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਊਬਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ले कनाडा आ गए। आई हैव अ सिक्योरिटी लाइसेंस, आई हैव अ ऊबर लाइसेंस। कॉमेडी कर रहा हूँ तो पहले टुक मी सम टाइम टू यहाँ पे, जैसे मैंने इंग्लिश में कॉमेडी करनी शुरू करी, यहाँ की इंग्लिश हमारी इंडियन इंग्लिश से थोड़ी सी फर्क है। जैसे आप प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हो, अब मेरे को ऐसा लगता है कि प्रोनाउंसिएशन इज समथिंग विच इज सब्जेक्टिव एंड वी शुड नॉट बी जजिंग ईच अदर ऑन दैट, राइट? ट्रू। मतलब अब जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि आजकल पोएम फॉर्म हो चुकी है, जैसे मैंने तो याद है अपन इंडिया विच है ना, नोएडा नवेडा ही कहते हैं, नोएडा है ना, लाइक माय मदर आई यूज्ड टू टेल हर प्लीज इट्स नोएडा, कनाडा, कनाडा। मेरे शो का नाम भी कनाडा नहीं कनाडा है, ठीक है ना। अब हम इंडिया में अपॉर्चुनिटी बोलते थे, राइट? आजकल अपॉर्चुनिटी हो चुका है, यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बोलते हैं लोग। अगर हम चू दी जगह टू बोलते थे केड़ा स्यापा पै गया, बहुत स्यापा पैदा है। कई बार इतने तुसी गलत कह सकते। नहीं देखो जी, मैनू ऐसा लगता है कि जब आप सशक्त हो जी, आपका भाषा पे अपनी कंट्रोल है। मैं तो एक गल कहना, आप व्हाई दिस ऑलवेज हैपेंस विद इंग्लिश लैंग्वेज, ऐसा मैनू लगता है इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, इट्स नॉट अ मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस एंड सक्सेस। ट्रू। जे किसी बंदे ਨੂੰ इंग्लिश नहीं आउंदी, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਹੈਗਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਸੇ ਤੇ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ, ਮੇਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਧੀਆ बिकॉज मेरी माँ बोली है, ठीक है। मेरी हिंदी भी बहुत अच्छी है बिकॉज मैं दिल्ली में रहा। इंग्लिश है बिकॉज आई हैव लर्नड इंग्लिश, ठीक है ना। अब जो मैंने सीखी है जी, मैं जो 30 साल सीखता रहा हूँ, आप बोलो कि 5 साल में सारी 30 वाली भूल जाओ, और जो हमने सीखी है वो गलत सीखी है। तो ये रशियंस जो होते हैं वो अपने रशियन एक्सेंट में बोलते हैं ना, है ना, उनको नहीं माड़ा लगता ना जो लैटिनोज है। तो अगर हम इंडियंस है, व्हाई वी हैव टू इमिटेट अदर पीपल एक्सेंट? सो
ब्यूटिफुली सेड, बिकॉज आई थिंक ये कहीं ना कहीं लोग उस वजह से स्टिग्मास में, टाबूस में चले जाते हैं। यार मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, मेरी इवन कई लोगों को तो लगता है मेरी पंजाबी भी अच्छी नहीं, बिकॉज कोई कलकत्ता से पंजाबी बोलता होगा, पहुंचा होगा, कोई जरूरी तो नहीं कोई हर कोई पंजाब से आएगा। नहीं हुण मैं पंजाब च रहा जी, मैनू आ पता भी मैं लाइक पंजाब, अगर आपको नहीं पता, पंजाब में ना डिवाइड कर देते हैं माझा, मालवा, दोआबा ऑन द बेसिस ऑफ रिवर। ऑब्वियसली तो मेरे को तो मैनू तो डायलैक्ट भी पता है। जिवें हुण साडे पंजाब मैं माझा हो गया, गुरदासपुर ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਸੀਨਾ ਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਮੁੜਕੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਮੁੜਕਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ। ਮੁੜਕਾ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਯੂਰ ਸਵੈਟ, ਰਾਈਟ। ਉਹ ਫਰਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਮਾਣਾ ਚੱਲ ਜਾਓ, ਯੂ نو ਸਮਾਣਾ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਤੀ, ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਤੀ, ਉਹ ਤੀ ਬਹੁਤ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਫਲੇਵਰ ਹੈ। ਉਹ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਬਲ ਰਾਜਮਾ ਕਹਿ ਲੋ, ਹਾਂ ਉਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਮਗਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਲੇਵਰ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਮਾ ਉਹ ਛੱਡੋ, ਗੋਲਗੱਪੇ ਕਹਿ ਲੋ, पानी पूरी एक जगह बनेगा, और यू नो बटाटा पूरी, मतलब हर जगह का अपना एक फ्लेवर है। जनानियां कह लो, हर जगह दी जनानी दे वखरे टाइप दा कलेश है, पर कलेश कॉमन है नहीं, मतलब एक जनानी दे अगे मैं आई एम जस्ट जोकिंग। हुन ज्यादा आई विल नॉट एक्सेप्ट, मैं नहीं चाहता कि बहुत ज्यादा सीरियस ना होए ना मामला, है ना, बिकॉज़ लेट इट मेक इट वेरी कैंडिड एंड वेरी लाइट। नहीं, आई रिस्पेक्ट ऑल लेडीज, you are the reason because which our ਸਾਡੇ ਸ਼ੋ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੇ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸਾਹਮਣੀ ਸੀਟਾਂ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਰਾਈਟ। You're covering up now. It's okay. No, you're a gentleman, I know that. जी। But ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ pronunciation ਦੀ, so here I have seen you, like everybody knows it, that you're a multilingual comedian. Yes. So ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ भी, हिंदी भी। जी। मैं एक ये बात के लिए आपको धन्यवाद दूंगी कि आपने अपनी अंदर की जो पंजाबी तो है वो तो संभाली, मगर जो हिंदी आप सीख के आए, you know, like you must have, you said you've been born and brought up in Delhi. Yes. आप कॉमेडी इंग्लिश में भी करते हैं. Yes. How challenging was that? It took me some time to perceive how people speak here. And यहाँ पे like the English is very ungrammatical, very you have more of a slang, और आप difficult words use करोगे तो वो उनको समझ भी नहीं आते हैं. और हम लोग मतलब मैं कभी कभी बड़ा हैरान होता हूँ कि यार हमारी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है लेकिन हम उसको फॉरगेट करके बेवकूफ़ों वाले स्लैंग एक्सेंट पे ज़्यादा जोर है. Like other day I was doing a show and I was talking to someone. I said like that lady looked at me condescendingly. Okay. Like looking at someone in a very downward way. True. Right? उत्थे condescendingly दा मतलब ही नहीं पता सीगा. फिर मैं it took me some time because मेरे को उसका synonym उस टाइम याद नहीं आया. Yeah. Because मेरी vocab में वो word है. राइट. अब जो इजी वर्ड्स होते हैं जैसे आप कॉम्प्रीहेंड कह दो या अंडरस्टैंड की जगह कॉम्प्रीहेंड कह दो तो इतने कई बार लोग इन्ना भी नहीं समझते. तो मैनू ये लगता है कि साडे बंदे असी इंडियन इन्ने सियाने बंदे हाँ पर असी एक्सेंट ते मरी जाने. We should work on our own vocabulary. और मैनू ऐसा लगता ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਐਕਸੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ I don't want to like sabotage or oppose anyone. ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ. ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀਣਾ ਮੰਗਦਾ ਆ. What is ਮੰਗਦਾ? Because they are thinking in English. I want to drink a tea with you. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੱਜ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੜਬੜ ਹੈ ਗੜਬੜ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ but isn't it hilarious? From there the script writers have taken so many concepts. Yes. ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਗੋਡੇ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ because ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਆਂਦਾ ਹੈ ਫੋਰਨ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਉਹਦਾ slang ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ. ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ that is the way they have seen people doing it. Yes. And it's very natural. They imitate each other. ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੰਪਲ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਐਟਲੀਸਟ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਰਨ ਅ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ. ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਾਈਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ 30-35 ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਥਿਕ ਐਕਸੈਂਟ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਵਾਂਗਾ. ਮੈਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਰਾਮਾ ਜਿਹਾ ਕਰਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਹੈ
ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਐਕਸੈਂਟ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰੀ ਨੂੰ ਖਾ 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 ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰੀ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਿਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ। IELTS 9/9 ਆਈ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਡੀ ਸਿਰੀ 5 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰੀ 10 ਬੈਂਡ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਿਰੀ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਕਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। But what do you like? You've already we've touched base upon many few things ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, but ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ youth ਦੀ। You know, like you're at that stage. I think you've crossed your like college days. जी. And you're not so big enough to forget all that. Oh, not at all. So that means even when I look at the youth, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਪਿੰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਹਲੇ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਹੈਗੇ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਾਈਡੈਂਸ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੈ। Yes. ਐਂਡ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਬੜੀ ਹੈ। Yes. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ। ਅਗਰ ਯੂਥ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਗਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਣ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਕਾਜ਼ ਸੀ ਸਟ੍ਰੈਸ is something which will come to you. Yes. Even you want it or if you don't want it. Yes. It is a byproduct of whatever you do. जी. But stress management चाहिए. Yes. learn करनी पैंदी. Yes. And your committee or it's a very big stress buster. It's a stress manager. So what do you want to say to your youth? How can they be connected? And ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ। Stand-up comedy was very big concept in India. Here people are still realizing it slowly. Do you agree with it? नहीं, but ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ 2-4 ਸਾਲ ਚ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਆਇਆ। People are accepting it, ਔਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ they are always looking for somebody who is coming from India. But ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। That's what I'm trying to say. ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬੈਕਬੋਨ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਮੇਡੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੈ ਔਰ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ they are always big business houses। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੌਬਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਐਸਕੇਲੇਟ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ। ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟੈਲ ਅਬਾਊਟ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਬਟ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਟ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਮਾਈ ਓਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪਾਂਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਦੇ ਲਵ ਮੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਭਤੀਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਇਹਨੂੰ ਜੌਬ ਲਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਿਊਮੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭੇਜ ਦੇ ਸਿੱਧਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਆਓ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਾਊਂਟਡ ਟਿਕਟਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਯੂ ਕਾਂਟ ਈਵਨ ਪੇ, ਆਈ ਵਿਲ ਪੇ ਫॉर ਯੂ ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਫ੍ਰੀ ਟਿਕਟਸ ਦਿਓ। ਬਾਏ ਟਿਕਟ ਐਂਡ ਟੇਕ ਮਨੀ ਫਰੋਮ ਮੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੈਟ ਵੁੱਡ ਬੀ ਮਾਈ ਦਸਵੰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਰਦਾਰ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। God bless. ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਲਿੰਗ ਲਈ ਹੀ they put you as an instrument to make people be happy. You're making people happy. So ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ I'm just remembering my days। ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲੇ ਲਵਾਂਗੀ क्योंकि दूजे तो केवल I was very good in dance and मेरी मदर को बड़ा शौक था मंदिर में कीर्तन सत्संग में जाने का। तो उन्होंने मैंने कहना अब ना तराना डांस करेगी और भजन लाइक कि कई बार बच्चे को बोलते हैं चलो खड़े होके कुछ गा के सुनाओ, जोक करके सुनाओ। So I was like maybe my acting started with my mother because she wanted me to do something in front of people because वो बच्चे दी वाही ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Did it happen with you? Like all of a sudden somebody is asking you? many times ਉਹ ਛੋਟੇ what exactly ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਸੁਣਾਓ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਲਾਲਚੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅੰਕਲ ਲੀਚੜਾ 10 ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਆ, ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤਾਂ 50 ਦੇ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਏਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 100 ਰੁਪਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 5 ਦੇ ਦਿਓ। Oh my God। ਤੇ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 100 ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੂੰ 5 ਮੰਗ ਰਿਹਾ। So you were businessman in your childhood also? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ
5 ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ, 100 ਮੰਮੀ ਨੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਆ। So sweet. तो 5 ही दे It's दे। true. It's true। मम्मियाँ जो होती है मिडिल क्लास मम्मियाँ, उनकी पूरी उनको अपने बच्चे को जब नचाती है तो उनको पता है हमारा प्रोडक्ट नहीं, तो यही तो मजा है। तो उनको होता है ये हमारा प्रोडक्ट नाच रहा है ना। और बार बार मम्मी डायलॉग, तेनू 9 महीने अपने ढिड च रखिया, 9 महीने हुण ढिड च नहीं करे, सिर च रखना सीगा। Okay, I totally get you. But ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, you're all over the place, ਜੀ। you're right now ਜੀ। people love you। शुक्र है जी। ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਹੁਣ ਹੱਸਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓ? ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਆ ਆਫ ਲੇਟ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਅੰਕਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। Okay। अंकल अपने पूरे वो पुराने उसमें चले जाते हैं, पर साड़ी किसी ने बाह नहीं फड़ी। तो फिर मैं अंकल जी मेरा किसी ने कुछ नहीं फड़िया, मैं आप ही बने कॉमेडियन। तो एवरीबडी हैज दैट आर्टिस्ट इन देम। और लोकी पर बाद से लोकी कहते हैं कि वो इकोनॉमिक्स में मैस्लोज लॉ नहीं आता, ऐसे ट्रायंगल सा, फूड शेल्टर प्रोटेक्शन है ना, ऊपर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होते हैं ना, जो ऊपर ट्रायंगल में होता है, वो हर एक के अंदर होती है। किसी को लेट एहसास होता है, किसी को पहले होता है। मेरे को लगता है मैंने शुक्र है टाइम सिर हो गया, मेरे को अभी भी लगता है थोड़ा लेट हुआ, बट ठीक है, जब भगवान का हुक्म होता है ताई होना होता है। आपने तो वो बात कही थी, जब हम थिएटर करते थे जी, तो हम लोग को ये फील होने लग गया था कि हमारी जिंदगी भी एक स्टेज है, जी, हर कोई किरदार निभा रहा है। सच है। ये ट्रेन है, लाइफ इज अ जर्नी ऑफ अ ट्रेन। आपके साथ कब कौन इस ट्रेन में चढ़ रहा है, जी। कब कौन उतर रहा है, ये जो जीना मरना है भगवान ने अपने हाथ में रखा है। और जब तक आपके साथ कोई हमसफर है, आज मैं आपको मिला हूँ, हो सकता है वाहिगुरु करे मैं 100 बार 1000 बार मिलूँ, हो सकता है हम 6 महीने ना मिले। कैनेडियन लाइफ चली ऐसा है। तो जैसे मेरी आपसे कब से इस पॉडकास्ट की बात हो रही थी, 2-3 महीने से आप कह रहे थे हरमीत मुझे पॉडकास्ट करना है, मैं कहता हाँ जी हाँ जी। अब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं कोई बहुत ज्यादा बिजी हूँ, कोई रोज शो नहीं कर रहा, लेकिन लाइफ चला नहीं बताया, समय मुकर्रर होता है। बट आज तो बड़ा मजा आ रहा है क्योंकि हमें बताया कि अगले हफ्ते जी आपका बैंग बहुत बढ़िया, मतलब आई थिंक इस शो के बारे में प्लीज हमें बताओ, ऑडियंस को बताओ अपने आने वाले टूर्स के बारे में, जैसे आपने हल्की हल्की जिक्र किए हैं। जी, जी, जी। और क्योंकि आपका आने वाला टाइम बहुत अच्छा हो, पहले तो हम अरदास करते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू। और आप सबको हंसाओ, सब हंस हंस के लोटपोट हो जाएं। जी, जी, तो जी। बताओ अपने आने वाले सब। 20 जुलाई को मैं कर रहा हूँ जी, 20 जुलाई को। दिस इज और मैं भी उसमें थोड़ा सा हिस्सा दूं। हाँ, शी इज अ होस्ट, शी इज होस्टिंग, और बहुत अच्छा होस्ट कर रही है, और अच्छी बात है इन्होंने पैसे भी नहीं मांगे, तो मैं आई एम जस्ट नहीं, मतलब शी इज एंटाइटल्ड फॉर बिग मनी बट शी इज सपोर्टिंग मी। एंड 20 जुलाई को मैं बहुत बड़ा शो करो। दिस इज द फर्स्ट हिंदी पंजाबी शो। मैंने ओपन करेगी जैकी एम्स्टन, और ਇਹ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਰੀ 'ਚ ਕਾਫੀ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ, ਲੈਂਗਲੀ ਕੀਤੇ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਐਨ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ 3 ਸਾਢੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕੋਜ਼ ਜਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੈਨਿਊ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਯੈਸ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਈਕ ਡੂ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਔਰੀ ਲਾਈਕ 350 ਸੀਟਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੋ ਵਾਟ, ਸ਼ੀ ਲੁੱਕਡ ਐਟ ਮੀ ਲਾਈਕ ਦਿਸ, ਆਰ ਯੂ ਸ਼ੋਰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਹਰ करे, बिल्कुल कोशिश करांगे हौली हौली बंदे ले आने दी। ते उसके बाद मेरा इंडिया टूर है जी। आई एम गोइंग टू 14 सिटीज, 40 दिन वास्ते मैं जा रहा हूं। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अगस्त एंड सितंबर आई गेस। हाँ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਦਿੱਲੀ, ਨੋਇਡਾ, ਗੁੜਗਾਵਾਂ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਐਡ ਹੋਣੇ, ਫਿਰ ਕਲਕੱਤਾ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਬੈਂਗਲੌਰ, ਮੁੰਬਈ, ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ। ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਬਾਰਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਐਕਿਊਮੂਲੇਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾ ਕੇ ਹਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਆ ਤੇ ਥਾਟ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। फिर कैलगरी एडमिंटन है, वापसी आके वाइट रॉक कॉमेडी फेस्टिवल में आई एम रिप्रेजेंटिंग सरी, तो अपनी सरी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं। तो फिर उसके बाद आपके आशीर्वाद से देखेंगे यूके, अमेरिका। Obviously the world is like waiting for you. जी जी जी, and we pray that thank you manifest हो ही जाएगा because you've been doing so good about it. जी जी जी। So something which still bothers you, कई बार मुझे लगता है कि एक आर्टिस्ट को अपनी लड़ाई खुद भी लड़नी पड़ती है, 100%।
ना। एक आर्ट बनाना है और आर्ट को बेचना, लोगों को बताना कि मैं आर्टिस्ट हूँ। और मेरे साथ तो ये भी होता है कि उनको ये बताना कि यार मैं मजाक कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू गिव दैट नज टू यू। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं लेडीज़ की रिस्पेक्ट नहीं करता, यस, ये बात को आप बिल्कुल सिरे से खारिज कर दो। वी रिस्पेक्ट एवरीवन, आप लोग हमारी ऑडियंस हो जी। और दूसरा मेरे को ये भी लगता है कि भाषा के आधार पे हम जो फ्रेगमेंटेड हो जाते हैं, डिविजन्स हो जाते हैं, वो नहीं होने चाहिए। कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं इंग्लिश में कॉमेडी करता हूँ, जब कोई चीना आंदा वो भावे मैंडरिन बोल रहा है या कैंटनीज बोल रहे हैं, उन्होंने इतने 2 भाषा चलती हैं, वो सारे चीनों ने सपोर्ट करते हैं। कोई मैक्सीकन आंदा है तो मैक्सीको छड्डो नाल दे लैटिनो जी साउथ अमेरिकन कंट्रीज है वो भी नहीं सपोर्ट करती है। साउथ अफ्रीका कितना वड्डा वो कोई उत्थे दा जे ब्लैक कम्युनिटी आंदा सारे उस इलाके दे, पर जब कोई इंडियन जांदा ਅੱਧੇ ਲੋਕੀ ਸੋਚਦੇ ਲੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਜਰਾਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਰ ਉਹ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੈਗਮੈਂਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਆਲ ਆਰ ਵਨ, ਵੀ ਆਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਇੰਡੀਆ। ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਿਖਦਾ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਆ, मेरी तो कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है। लाइक दिस हैपेंड विद मी, आई वेंट टू सियाटल, दैट वाज अ लाइक ओपन माइक। वो बंदे ने की किया कि मेरी पग वाली फोटो विच लाती, बाकी सारे गोरे काले दी खब्बे सज्जे लाती ते उत्थे 25-30 बंदे उदां ही आ गए ते मैनू इन्ना वधिया लग्या। उत्थे 3-4 साउथ इंडियन लोकी आए, वो अपने फ्रेंड नू लैके आए, उत्थे सारे इंजीनियर्स हैगे आ। वो अपने गोरे नू कह रहा, कहंदा ही इज वन ऑफ अस। सो नाइस। मतलब उन्हों हिंदी पंजाबी भी नहीं आउंदी सी, बट उन्हें क्या कहंदा ही इज वन ऑफ अस, क्योंकि मैं इंडियन हां और ए भी इंडियन है। दैट वाज सच अ ब्यूटीफुल थॉट। आई विश वैसे भी मैनू लगता कि ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਆ जी, वर्ल्ड चेंज ਹੁੰਦਾ है जी, और generations change ਹੋ ਰਹੀਆਂ जी, so the thought process is already a provoking thought process right now। जी, आने वाला समय बहुत बढ़िया होएगा। जी, सुनने आए हैं कि the world is one family जी, and our own Indian family has to be one too। yes, we India has to be one। yes, तदी ते ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕਿਥੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ। yes। ਸੋ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਗਾਲ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਰਾਠਾ, ਹੈ ਨਾ, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, starting from there, yes, then that means we know it, yes, but are we implementing it? yes, yes, But we need to, yes, if we are not। yes, यही फर्क है हमारे और चाइना में, इसलिए हम हमसे आगे हैं। अगर आप इस चीज को कभी सोचो ध्यान से। हमें अपनी कम्युनिटी में रहने देंगे ना, हम कुछ ज्यादा ही बातें कर नहीं रहेंगे। सी द थिंग इज दैट वी लव ऑल ऑफ, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। कभी अब आप इस बात को अपने ऊपर लेके आओ। अब मैं आपको बताता हूँ कि जब कोई लड़का किसी लड़की को लाइक करता है जी, तो वो ना डरता है उसको प्रपोज करने में भी। अच्छा। उसको पहले एक डर होता है यार ना कर दे। हाँ, ये आपको पता है। हाँ, तुम लड़कियों को पता होता है, हाँ। लेकिन तुम लड़कियां फिर भी ड्रामा बहुत करती है। तुम क्या कह रहे हो, मेरे पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है ना। शर्म भी होती है पहली बार, जरूरी नहीं कि हाँ एक बार में निकल और जाएगी। उसके बाद एक भगवान की ऐसी पता नहीं क्या ऐसी कटु नीति है भगवान की, तुम लड़कियां बचपन से ही सुंदर लगती हो और हम लग रहे होते डंगर, ठीक है। और जैसे हमारी प्यूबर्टी हिट करती है, लड़की एकदम से परी बन जाती है ना, और लड़के हमारी गंदी गंदी मूछें आ रही हैं, बाल खड़े हैं, और ऊपर से मिडिल क्लास फैमिली में घर वाले कपड़े दिला के राजी नहीं है। That's a very sad story in every middle क्लास house, है ना। शायद generations में ना इसी को बचत कहते हैं। हाँ। इसी को आजकल एक सीरियल चल रहा है गुल्लक, हाँ। मैं इतने प्यार से देखती हूँ कि मुझे वो समय याद आता है। Yes. एक जैकेट के लिए हम सिबलिंग्स लड़ रहे होते थे, Yes, yes. you know like and but सेम जैसे कपड़े पहनने, क्योंकि पता है कि एक के साथ एक फ्री मिल रहा है। अब होता क्या, जब हम टाइट होते हैं ना, जब हमारे फाइनेंशियल टाइट होते हैं, तो हम लोग उस चीज़ को कहीं ना कहीं बिजनेस भी करने लग जाते हैं, हम पैसे बचाने भी लग जाते हैं। मुझे ज़्यादा छोटे होते हैं ना हमारे, मैं दिल्ली में था पीतमपुरा में, आरजी ब्लॉक में, तो वहाँ पे ना कांग्रेस की एक रैली थी। अच्छा। तो रैली में वो हाथ का बिल्ला नहीं देते? जी बिल्कुल देते। हाथ का बिल्ला तो मेरे को ना एक दोस्त ने दे दिया, उसके पापा कांग्रेस के वर्कर थे। जी, जी, जी। उस टाइम वो हाथ के बिल्ले की इतनी वैल्यू, मेरे को पता नहीं था उसका क्या मतलब क्या है। तो मेरे को ना का पता है ना, अब रहने तो और सियापा ही बह जाना जेड़ा माहौल चल रहा है। तो वो हाथ उसने दिया, अब सुनो मेरे को नहीं पता था वो कांग्रेस है क्या। तो वो हाथ ना मैं स्कूल लेके गया, गोल्डन कलर का हाथ था, वो लोग यहाँ पे लगाते हैं ना, है ना, जैसे इंडिया में होता है ना, हमारे रामलीला में, है ना, डालमिया जी, बसिया जी, जिंदल जी, सारे बड़ा फूल लगाते हैं ना, और इसके नीचे वो रिबन का ऐसा नीला वाला। तो वो ये हाथ यहाँ लगाते, तो हाथ ना मैं स्कूल में ले गया, तो अच्छा, वो स्कूल में ना एक लड़के से हाथ टूट गया। ओहो। तो मैंने उसको बोला ये भगवान का हाथ था।
Seriously? ये तेरे को पता You है? did that? यस, और मैंने उससे 5 रुपए लिए, फिर 5 रुपए के हमने 10 समोसे खाए, 50 पैसे का एक मिलता था। I'm shocked right now. ये हमने किया है, हम मिडिल You क्लास। were a nasty, mysterious यस child. नहीं, हम नेस्टी नोस्टी वी वर तंग चाइल्ड, मामा पैसे ही नहीं देंदिया सीगियां, है ना, वो ताई तो कहंदा कोई प्यार करे। से माँ पे बार-बार डांट रहे हो। मतलब अंदर से तो देखो ऐसा nasty थे तुम। मेरे को ऐसा लगता है जो माँ बेटे का रिश्ता होता है ना, इससे पावन रिश्ता कोई भी नहीं है, तुमने इससे वो ऊपर प्यारी रिश्ता बात। कोई भी नहीं है जो माँ बेटे का रिश्ता है। मतलब बाप बेटे का भी है, बाप बेटी का भी है, सब कुछ है। अच्छा। तो वो जो शुरू से ही पहला लफ्ज़ ही जो निकलता है, आज मैं जो भी कुछ हूँ अपनी मम्मी के कारण हूँ, और उन्हीं के लिए संस्कार है। माय मॉम वाज अ प्रिंसिपल, शी वाज अ प्रिंसिपल, या मादा लाडला या मादा विगड़ा होया मुझे? जो मर्जी कह लो, माँ कदी भी अपने ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਉਂਦੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੰਗੀ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ। बिल्कुल। ਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ऑडियंस ਸਕਦੇ। को मैंने दसना पड़ेगा, मेरे और हरमीत के एसोसिएशन के लिए जब ये आए थे, और हम सब बड़े खुश थे क्योंकि मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड आपके जानने वाले हैं, धवन साहब ने मुझे बताया, यू नो, बिकॉज यू रजनीश धवन, रजनीश जी 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 जी। सो एंड देन वी वर ऑल वेरी गुड क्योंकि आप दोनों ने इकट्ठा भी किया जी, जी, एक जी, दो जी, जगह, जी। और उसके बाद आपकी मेरी मुलाकात हुई, जी, जी। और बात यहाँ पहुंची कि जब मैं अपने नॉन प्रॉफिट के लिए जी जी जी। प्रोग्राम कर रही थी, मामा ठंडिया हाँ जी छावा, हाँ जी हाँ जी और मेरे मन में ये प्रभु जानता है कोविड चल रहा था, हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और हमने कॉन्सर्ट करना था पंजाबी सिंगिंग को लेके, और बुजुर्गों के लिए ये फ्री कॉन्सर्ट था जी आई रिमेम्बर, पंजाब भवन में करा था। पंजाब भवन। Yes. और मैंने ये माँ के लाडले या माँ के बिगड़े हुए मुंडे को सिर्फ इतना बोला, हरमीत क्या आप आ सकते हो? ऑडियंस विल बी, आई डोंट नो वेदर दे नो इट और नॉट, he didn't even said one thought also. He said पहुंच जाऊंगा जी, मैं 10 दो कितने बजे पहुंचना है, एंड देन दिस एंड द सीरीज डिडंट स्टॉप. This year we did such a big show. It was very big. It was very big. Yes. And this time everybody was waiting for him. Yes. Because he is a known person now. Oh, I agree. But ये charity मन में या कुछ भी ऐसी चीजें, how do you get it, or is it like natural to you? ਨਹੀਂ ਨੈਚੁਰਲ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਂ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੈਲਵ ਇਨਟੂ ਦੈਟ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਆਈ ਲੌਸਟ ਮਾਈ ਮਮ, ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਅ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਫ ਬਲੱਡ ਕੈਂਸਰ। I lost her in 2019। But I didn't know this. ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਾ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਦਰਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ And ਹੈ। our older adults, our community ladies ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਹਾਂਜੀ, ਦਿਨ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, Yes. ਬੜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੀ, ਜੀ, ਜੀ, ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੀ। ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਮਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲਦਾ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਗਾਲਾਂ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਗਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਰੋਟੀ 'ਚ ਘਿਓ ਪਾਈ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਹੈ ਨਾ? ਘੁੰਮਦੇ ਘੁੰਮਦੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੀ, ਜੀ। ਯੂ ਨੀਡ ਹੈਵ ਅ ਮੈਂਟਲ ਸ਼ੇਡ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੋਰੀ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਨਾਂ ਡੈਕੋਰਮ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਛਿੱਤਰ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਸ ਇੱਕ ਛਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਐਨ ਤੀਰ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਨਾ ਹੀ ਕਹੋ ਇੱਥੇ ਤੇ 911 ਸੱਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚੇ। ਉਹ 911 ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਰਸਲ ਪੀਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਪੁਲਿਸ ਆਏਗੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਛਿੱਲੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਉਹਦੇ। And I have seen a very beautiful documentary. A police officer told the child जी। कि your mother is doing nothing wrong. Yes। You know, because ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, जी। he understand, but the law is like this when Yes। children are just not understanding जी, ਕਿ जी, जी। ਮਾਂ ਅਗਰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ Yes। ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ, Yes। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ Yes। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ, Yes। ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਵਾ ਠੰਡੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ
ਇੱਕ ਨਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਵਾਂ ਮੰदिर ਜਾਵਾਂ, अगर कोई लेडी वो बेसिक सलवार कमीज फैशनेबल वाली नहीं, एक बेसिक सलवार कमीज जो होती है ना, जिसमें कहते फुल्ला वाली या बेसिक वो या बेसिक साड़ी कोई पहनी होती है, बेसिक साड़ी, तो वो देख के ना लगता है यार ये मदरली है ना, एक वो फीलिंग आती है ना उनको देख के कि यार ए मां वर्गी है, मां ही है। नहीं पर कहना की चाह रहे हो ਜਿਹੜੀ ਸਕਰਟ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਓਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੈਗੇ ਹੀ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਆਪਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ की तो सी मैं भी देखो नहीं मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको देख के मेरे को आप you could be like my friend, my big sister and all that stuff, लेकिन वो जो बेसिक सलवार कमीज वाली होती है ना, तो वो मेरे को लगता है यार ए मां है, इन्हें खुश करना चाहिए। बिल्कुल, और मैं तो उम्मीद करदी हां कि जब ਤੁਸੀਂ आओगे अपना टूर तो बाद एक ना एक प्रोग्राम करांगे ਜਿਹਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਲਾਈਵ ਸ਼ੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਪਲਾਨ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ, ਸਮਾਲ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਨ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸ਼ੋ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਆਏ ਸੀ, ਦੇ ਮਸਟ ਬੀ ਤੇਰੇ ਇਨ ਲਾਈਕ 70 ਐਂਡ 75 ਤੇ ਉਹ ਬਟਾਲੇ ਤੋਂ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਬਹੁਤ ਹੱਸੇ ਹੋਸੇ, ਪਹਿਲੇ ਦੇਵਰ ਬਿਟ ਜਜਮੈਂਟਲ ਅੱਧਾ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਧਰ ਸਭ, ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਸ਼ੋਅ ਚ ਮੇਰੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਤੇ ਆਂਟੀ ਅੰਕਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾ 4 ਬੱਚੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ 4 ਬੱਚੇ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ $1500 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਭੇਜਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਢਾ ਬੁੱਢੀ ਇਕੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪਰ ਨਾ ਦਾਣੇ ਇੰਨੇ ਆ, ਦੰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹੱਸੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਹਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ, which was the biggest compliment for me। तो शुक्र है जी, बड़े ऐसे जो इंसिडेंट होती है ना वो आपको और ज्यादा प्रेरित करती हैं। I think we're just coming closer to the end of the conversation, but I have some questions which are left for audience, maybe they are asking। जैसे आप कॉमेडी करते हो, आपने तो अपना एक पीस बनाया होगा जो भी है, is it for every generation to enjoy? Yes, okay, but it is 18+। मैं बिल्कुल ये क्लियर करना चाहता हूँ, छोटे बच्चे नहीं है, बिकॉज जब हम बात करते हैं, क्योंकि कॉमेडी है स्टैंड अप, हम हाथी चींटी या सूसू पोटी वाले जोक्स नहीं करते, क्योंकि जो $30 की टिकट लेके आ रहा है, मतलब मैं तो 30 की रखता हूँ नॉर्मली, ज़्यादा कम जो भी होती है, दैट हैज़ टू बी अ गोल्ड कंटेंट, मतलब पीपल शुड गेट द वर्थ ऑफ देयर मनी। बट आई हैव सीन, मैं बोलना नहीं चाहूँगी, मैंने कुछ लोगों से बात की और कुछ लोग ही हैं जो उन्होंने मुझे बोला यार हम गए थे ना, वो जो कॉमेडी करता है तो यार हर किसी को नहीं समझ आती, मतलब आपको ऐसे सुनने में आता है कि जो मतलब एक कॉमेडी में एक फ्लेवर होता है सटायर्स का, sarcasm का, and that is how comedy is famous for। You know, like if we know many people, Zahir Khan है जिनके नाम अभी आपने लिए, जाकिर खान, so sorry, so अगर उनकी कभी सुन ले तो उन लोगों ने तो पूरे यूनिवर्सिटीज और पता नहीं कहाँ के कितना कंटेंट डाल देते हैं, वो कंटेंट ही सुनने आते हैं। बट आपको ऐसा क्या सेटबैक सोचना पड़ता है अपना कंटेंट लिखने के लिए कि ये ऑडियंस एक्सेप्ट कर पाएगी या ये नहीं कर पाएगी? डू यू हैव टू गो थ्रू ऑल दैट और and the audience is ready to take it whatever they take it? हमारा एक जो उस्ताद था, जैसे मेरा दोस्त है जिसने मुझे इंट्रोड्यूस करा, एक उस्ताद भी था सरदार महीप सिंह। अच्छा, वो आजकल बड़े फेमस है, जो एक मम्मी कैसी हैं पापा कैसे, उनका मीम बड़ा फेमस हो रखा है। ही टॉट मी, तो उनके साथ ना हमने पहले नए ओपन माइक करने गया ना, तो मैंने उनको फटाफट बोला 5 सर मैं कैसा था, तो उन्होंने मुझे एक बात बोली कि टॉक टू मी आफ्टर 100 ओपन माइक्स। कहते 100 ओपन माइक तक तेरे पैसे भी लग जाएगा, टाइम इतना लग जाएगा, तुझे पता लग जाएगा कि तेरे को ये चीज़ करनी है या नहीं करनी, और इवेंचुअली यू विल फाइंड पीपल लाइक यू। तो हर एक के लिए चेंज करता रहेगा ना, तो तेरी अपनी रेसिपी खराब हो जाएगी, क्योंकि हर बंदा, अब किसी को जेनिफर लोपेज अच्छी लगती है, किसी को हेमा मालिनी अच्छी लगती है, किसी को कोई और अच्छी लगती है, ठीक है ना, मतलब एक एग्जांपल है, कोई अक्षय कुमार का फ़ैन है, कोई सनी देओल का फ़ैन है, कोई अजय देवगन का फ़ैन है। ऐसी कॉमेडी में अब इस टाइम इंडिया में कोई जाकिर का फ़ैन है, अभी बस्सी आ रहा है, अनुभव सिंह बस्सी, उसका बहुत क्रेज़ है, कई हर्ष का फ़ैन है। अब कई कहते हैं हर्ष यार गाली देता है, ऐसे करता है, अरे यार उसका इम्प्रॉम्प्टू का किंग है, वो टीवी तक पहुँच गया। और अभी मेरे को पीछे मिला, सलमान खान तक जब पहुँच गया, तो मैंने
मैंने कहा यार पाजी बॉलीवुड तक, कहना नहीं यार। तो आई मस्ट से दैट आप लोग आर्टिस्ट लोग अपने दूसरे फेलो आर्टिस्ट के लिए इतना खुश होकर बोल रहे हो, दिस इज व्हाट एन आर्टिस्ट इज ऑल अबाउट। गॉड ब्लेस। थैंक यू। नहीं तो बस फिर नहीं जी, स्टैंड अप कॉमेडी में हम सारे एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और हर बंदे का अलग जॉनर है, और मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि हम किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहते, हम किसी को डिफेम, मलाइन या सैबोटेज नहीं करना चाहते। हमारी एक ही इंटेंशन है कि आप हंसो, खुल के हंसो, और इतना हंसो कि एक बार तो आपका स्ट्रेस सारा खत्म हो जाए। उसमें जितना आप लोग परफॉर्म करते हैं, लाइक हमारे 2 टर्म्स होती है, एक होता है किल करना, एक होता है बॉम्ब करना। किल का मतलब होता है जब आपने हंसा हंसा के कहना टिड्डे बखियां पाड़ती हैं, हंसा आता पूरा, है ना। बॉम्ब करना जब एकदम साइलेंट हो गए। तो अगर हमारी मान लो 30 मिनट की परफॉर्मेंस होती है, हाइपोथेटिकल बता रहा हूँ, तो अगर हम किल कर रहे होते हैं वो 35 की हो जाती है। वाह। और Because जब you get the response. we get the response. Yeah. जब बॉम्ब कर रहे हैं तो 20 मिनट रह जाते हैं। 20 मिनट रह जाते हैं। So in the end I would say like आपका शो बहुत सक्सेसफुल Thank you. हो, और any message which you want to give to the audience, and what way you want to see yourself 6 months or 1 year from now? मैं कहना चाहूँगा जी कि मैं पहला सिख मल्टीलिंगुअल कमेडियन है थे। आई एम डूइंग इन हिंदी, इंग्लिश एंड पंजाबी, और मैं चाहना कि तुसी सारे आओ, अब मेरा शो देखो। और एक मैं अपने आप नाल ही वादा किया, जद मैं आया सी मैं गोरिया च भी वड़ गया, तो कई नूं लगे कि यार तू, तेरा नाम बहुत लंबा है, हरमीत सिंह कोहली, यू नो, मे बी यू गोना शॉर्टन योर नेम लाइक टू हावी और हैरी, क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है। तो मे बी आई गोना चेंज माई लुक। तो मैं एक चीज़ नूं बड़ी कॉन्फिडेंटली अपने आप नूं वादा कर रहा कि मैं जब तक कॉमेडी करांगा मैं करता रहूँगा, और अज कामयाब होगा, कल होगा ना, मैं अपना ना चेंज करांगा, ना मैं अपना स्वरूप चेंज करांगा, ना मैं अपनी सोच चेंज करांगा। मैं जिहो जाएगा मैं उहो होवांगा, एंड आई मेक इट श्योर कि एक दिन तुसीं सारे कहोगे कि ए जिथे पहुंचिया, ए जिहड़ा परफॉर्म कर रहा है, ही इज़ वन ऑफ अस, और यह साडा भरा है। बिल्कुल। मैं आपकी बात से फिर अब आखिरी में बात करती हूँ। मैंने ये पढ़ा था और शायद मैं अपने आप को भी समझाती हूँ, हारना वहाँ ज़रूरी हो जाता है जब लड़ाई अपनों से हो। जी जी। जीतना वहाँ ज़रूरी होता है जहाँ लड़ाई अपने आप से हो। जी जी, क्या बात है। जीत मिले ये तो किस्मत की बात है जी, मगर हमने कोशिश ही ना की हो, ये गलत बात, ये गलत बात है। क्या बात है, क्या बात है। यू आर ऑल्सो अ वेरी गुड थिंकर। आर्टिस्ट ही होता है। आई डोंट नो, बट यही, इसी का नाम जिंदगी है। इसी का नाम जिंदगी। कहते हैं ना, जिंदगी के रंग जी क्या हमें मिलेंगे जी, ये हम पे नहीं छोड़ा जाता, जी जी, बट हम क्या रंग उनके बनाते हैं, क्या रंग हम बिखेरते हैं, क्या रंग हमारे संग बन जाते हैं, ये हम पे निर्भर करता है। इरफान खान के एक डायलॉग था, कहता है कि जिंदगी बहुत खूबसूरत होती है, हम जीने लेट शुरू करते हैं। सो ट्रू। तो अगर हम टाइम से जीना शुरू कर दे, और जैसे जीके मीडिया की भी हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, मैं यही बोलने वाली थी। या इनसे भी मैं पाजी से मिला, क्योंकि हम शो से पहले इनकी बात कर रहे थे कि हाउ परसिस्टेंट इज दिस गाय। वी सी हिम एवरीवेयर। मैं इनको एबर्ट्सफोर्ड में देखा, किसी का वो मुहूर्त था, वहाँ पे ये पाजी थे खड़े, उसके बाद कोई सिंगर आया था, उनका इंटरव्यू ले रहे थे। मतलब आई सी देम एवरीवेयर एंड दे आर कवरिंग इवन मिनिस्कल डिटेल्स, छोटी छोटी चीजें। पंजाब दी खबर है, कोई इंडिया दी, कितने दी भी खबर है, फिर इतने दी आर्टिस्ट दी खबर है। मैं तो कहना जीकेएम ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਂਸ ਦਿੱਤਾ, ਪੂਰਾ ਸੈਟਅਪ ਲਾਇਆ। ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਨਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਕੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ। And I would say to the audience of people who are watching us कि कोशिश सब कर रहे हैं। किस लिए? क्योंकि जिंदगी में 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, एंटरटेनमेंट, एंड वी एज अ टीम विल ग्रो। सो जीके मीडिया जो कोशिश कर रही है किरदारों को, शोज को, बढ़िया कंटेंट को लाने की, जहां जहां जो जो चीजें हो रही है आप तक पहुंचाने की। सो ऑडियंस का भी उतना ही पूरा कंट्रीब्यूशन चाहिए कि आप देखें हमारे इनके शोज को, जीके मीडिया के कंटेंट को, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। एक गल होर, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल है भाजी दा कमेडियन, वो भी दस देना है ना। हरमीत सिंह कोहली लिखोगे भाजी दा कमेडियन, उत्थे मेरी पूरी रील्स वीडियो आउणगियां। यूट्यूब ते भी हैगा, मैं टिकटॉक ते भी हैगा। पहले आई वाज सच अ मॉरन, मैं
शोज करता रहता था, मैं कुछ डालता ही नहीं था रील्स वगैरह, पर अब मैं थोड़ी थोड़ी डालने लग गया हूँ। मेरे को मेरा बहुत प्यारा एक दोस्त मिल गया मलकीत सिंह मनी, वो मेरे को सपोर्ट भी कर रहा है, मेरी वीडियो कंटेंट में डालने में मदद भी कर रहा है। तो कहते हैं ना देर है दुरुस्त है, तो there's always a time for it. That's how the media we need it. Yes, Because अच्छे आर्टिस्ट लोग वही करते हैं जिसमें वो बहुत like they excel in it. Yes, yes. So everything has to be done by the different people as well. Yes. So we are thankful to GK Media again. Thank you जी, thank you, And ਤੁਹਾਡਾ we're बहुत बहुत grateful to धन्यवाद। Thank you जी, Harpreet thank taking you। out his time. So आप सभी से एक गुजारिश है और साथ में आप लोगों को हम बता रहे हैं 20 जुलाई बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, आप हंस हंस के लोटपोट होने वाले हैं। सो डोंट फॉरगेट टू कम एंड रेस्ट ऑफ द डिटेल्स हरमीत विल टेल यू। जी 20th of July वैंकूवर नॉर्मन एंड एनिट रॉमस्टीन थिएटर 950 वेस्ट 41st एवेन्यू वैंकूवर। 5:30 बजे हम लोग गेट खोल देंगे और 6 बजे शो विल स्टार्ट। एंड दिस शो इज़ अ हिंदी पंजाबी शो। ओपनिंग एक्ट सिर्फ इंग्लिश में ओपनिंग एक्ट है जैकी एमसन का, और मैं जी हिंदी पंजाबी बोलांगा वो दोनों समझ सकते हो, बिकॉज असी अपना ऑडियंस बेस होर वड्डा कर रहे हैं। अगर आप हिंदी बोलते हो आप आओ, आपको सारे जोक समझ आएंगे। जे तुम पंजाबी बोलते हो तुम तो समझ ही जाना। तो आ जाओ जी, मिलते हैं सारे 20 जुलाई। सी यू ऑल, थैंक यू सो मच। थैंक यू।